Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our 12th class, subject history. Today we will discuss from the theme 5th through the eyes of travelers. We will discuss Bernier and the degenerate East. जो फॉरेन ट्रैवलर फ्रैंको बर्नियर थे, how he dealt with the Indian subcontinent, the Indian as a country, Mughal rulers. उसने हिंदुस्तान में आने के बाद फ्रांस और यूरोप को किस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया था, हिंदुस्तानी रियासतों, मुल्क और सबकॉन्टिनेंट को इन जनरल विद यूरोप एंड इन पर्टिकुलर विद फ्रांस. वो किस निगाह से हिंदुस्तान को देखता था, हिंदुस्तानी मायशत को, हिंदुस्तानी सियासत को, हिंदुस्तानी जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ थे, हाउ ही कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद द यूरोपियन countries in general and his own country, France in particular. Franco Bernier, he was comparing and contrasting everything he saw with Europe in general and in France in particular. यानी वो यहाँ आकर हिंदुस्तान के हालात को यूरोप के साथ बिलउमूम और फ्रांस के साथ बिलखुसूस मुवाजना करता था. He constantly compared Mughal India with the contemporary Europe and placed India inferior. यानी वो हिंदुस्तान को बहुत ही inferior position में रखता था as compared to the Europe and especially in France. Number one, on the basis of, first of all, what were the references or the causes he got inferior position, India's inferior position as compared to the Europe or in France? That was the ownership of land. इन्हें उसका ये मानना था कि यहाँ के जो रूलर थे, they are the real masters of the land, they are the real proprietors, they are the real authorities of the land, and the people have nothing to do with the land. They are simply the peasants. वो सिंपली काश्तकार का काम करते हैं. असल में जो मिल्कियत जो है, हुकूक जो है, राइट्स जो है, that stands to the owner of the land was only the king and the ruler, because he distributed the land to his officers, to his nears and dears, and the people have nothing to do with the land. They are simply the peasants, they are simply the time pass करने वाले लोग थे simply. One fundamental difference between Mughal India and the Europe was the lack of private property. उसका ये मानना था, जो बुनियादी जिसकी बुनियाद पे वो ये कहता था कि यहाँ पर जो इंडिया इज inferior in position, उसकी बुनियाद यह है कि the lack of private property. यहाँ के लोगों को ज़मीन पे मालिकाना हुकूक नहीं है. They cannot distribute the land to their own children and they cannot have their the long term support or long term process in the land, because वो सिर्फ टाइम पास करते थे, ज़मीन में काश्तकारी का काम करते थे. They have no rights. As the land belonged to the crown, land जो था, that was belonged to the rights belongs to the crown, not to the people. The who distribute it, क्योंकि वो crown ही, बादशाह ही इसके वो तकसीम करते थे towards the nobles, towards the officers, towards the officials. ही जिसको वो समझता था बेहतर, उन्हीं को में तकसीम करता है. It was disastrous for the economy and the society. As per the Bernier, वो कहते थे कि ये यहाँ की इक़्तिसादियात के लिए और यहाँ की समाजी ज़िंदगी और समाज के लिए बहुत ही नासूर था, क्योंकि वो because the land belongs to the crown, not to the people, not to the owners of the land, and they have no private property. Second, in India, the two classes, यहाँ सिर्फ दो ही classes थे. Number one, a small, very rich and powerful ruling class.
नंबर 1 जो पहला क्लास छो दैट वाज द रिच क्लास और द पावरफुल क्लास एंड दोज वर द nobles, those were the rulers, those were having the of the ruling class. This was the first class and a large poorest class. Second जो था that was the poorest poor, जो सबसे निचले दर्जे के लोग थे, दो people and they have the large population. And दो ही class थे. Number 1 the very rich and the powerful class and those were the rulers. And next was the poorest the poor, the very having the large number in the society, those were the poorest. And there is no middle class or the state in India. यानी हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का जो ग्रुप था, दूसरा सेकंड क्लास के लोग नहीं थे, बल्कि दो ही क्लास थे, द वेरी रिच क्लास एंड द पावरफुल क्लास एंड द वेरी पुअरेस्ट क्लास. जो मिडिल क्लास था वो नहीं था. एंड मुगल्स वर द किंग्स ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस. असल में हिंदुस्तान में जो मुगल्स थे, दोज वर द किंग्स ऑफ बेगर्स, वो मुसाफिरों के और बारबेरियंस के बादशाह थे. दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द बर्नियर. नेक्स्ट बर्नियर डिस्क्रिप्शन जो था, it influenced Western scholars, theorists from 18th century onwards. यही वजह है कि बर्नियर के बाद जो भी लोग यहाँ आए, जो भी अथॉरिटीज यहाँ आए, जो भी स्कॉलर्स और जो थ्योरिस्ट्स यहाँ आए थे, उनका ये मानना था बिकॉज ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, बिकॉज ऑफ हिज फाइंडिंग्स विच ही हैव स्टेटेड अगेंस्ट इंडिया, that they got influenced by this statement because of this. और उनके 18वीं सदी के बाद जो लोग यहाँ आए, हम एक दो की मिसाल यहाँ पेश करेंगे. नंबर 1 द फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू जो थे, ही स्टेटेड दैट द एशियन रूलर्स एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट्स. मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं, जो वो बहुत ही फ्रेंच स्कॉलर, मशहूर मारूफ स्कॉलर है, उनका ये मानना है कि नॉट इन इंडिया बट द होल एशियन जो सब कॉन्टिनेंट में जो रूलर्स थे, जो अथॉरिटी लोग जो अथॉरिटी रखते थे, दे हैव एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी. अब उनका जो सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, एंड दे सब्जुगेट देयर सब्जेक्ट्स. अब वो अपने मातहत लोगों को, आवाम को जितना वो हो सकते थे उनको दबाते थे. ऑल राइट्स एंड दे हैव नॉट ऑन द सिंपल बट दे हैव द एब्सोल्यूट राइट्स. दैट मीन्स द सब्जेक्ट्स हैव नो राइट्स एंड द एब्सोल्यूट राइट्स वर रिजर्व्ड टू द रूलिंग क्लास. इसके बाद दूसरा ये 18th सेंचुरी की बात है. 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स आते ही आर्ग्यू दैट इंडिया एंड Asian countries, the surplus was appropriated by the state and that was a stagnant system. उनका ये मानना था कि जो लोग वो कमाते थे, खेती बाड़ी करते थे, खुद जो खाते थे, इसके अलावा जो सरप्लस होता था, जो एडिशनल था, एक्स्ट्रा होता था, that belongs to the state, not to the people who worked there. यानी जो कामगार लोग थे, अगर वो कमाते थे, जितनी उनकी कमाई थी, कमाने जो खाने के बाद जो उनका इजाफा होता था, मतलब एडिशनल सरप्लस प्रोडक्शन होता था, दैट शुड बी द राइट ऑफ द पीपल हु हैड वर्कड इन द फील्ड, बट द सरप्लस बिलोंग्स टू द स्टेट एंड दैट वाज अ स्टैग्नेंट सिस्टम. यही वजह है कि इसमें स्टैग्नेशन था, इसमें जुमूद था, इसमें वो एक्टिविटी वो ऐसी नहीं थी कि दे शुड, फिर उसमें आइंदा वो इससे ज़्यादा काम करते थे, सो दैट इट में इंक्रीज द प्रोडक्शन में बी इंक्रीज. सो वजह यह है कि अब प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जितना खा सकते थे, इसके अलावा जो होगा वो स्टेट को जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता है. लिहाजा वो इस तरह काम नहीं करते थे कि ताकि पैदावार में इजाफा होता था. दैट वाज ए लेक्यूना इन द सिस्टम. एक और, हालांकि ये दिस वाज रिगार्डिंग द फॉरेनर्स, रिगार्डिंग द 18th and 19th century from Montesquieu and Karl Marx. हकीकत हाल क्या था? इसके बाद जो अबुल फजल इसके अकबर के ज़माने में लिखते हैं, हकीकत ये है कि कहते हैं कि in 19th century 15% of the total population lived in the towns and they have higher and better position regarding the Europe. अबुल फजल लिखते हैं कि 17वीं सदी में
15% पॉपुलेशन जो थी वो टाउन में, वो शहरों में, वो कस्बों में जिंदगी गुजारते थे। एंड उस वक्त जो 17वीं सदी में अगर यूरोप की बात करेंगे, वी विल कंपेयर इंडिया विद द यूरोप, तो उस वक्त 15% से कम यूरोप में लोग कस्बों में, शहरों में जिंदगी गुजारते थे। एंड देयर पोजिशन वाज फार बेटर दैन द यूरोपियन पीपल। लेकिन ये स्कॉलर्स, इनका मानना है कि उन्हीं वो देश, उनका ये मानना था कि ये दे आर द पीपल फ्रॉम एशिया, दे आर डाउन ट्रॉडन पीपल, दे आर इन्फीरियर एज कम्पेयर टू द यूरोप। हकीकत हाल ये है कि जो 17वीं सदी में पोजीशन थी, टाउन्स में 15% लोग रहते थे और अच्छी खासी पोजीशन थी उनकी एज कम्पेयर टू द यूरोप। नंबर 1। नंबर 2, देयर वायर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स। वो और लिखते हैं कि यहाँ हर एक किस्म के टाउन्स थे। शहरों में ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज वायर थे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे अलग, ट्रेडिंग टाउन्स थे, पोर्ट टाउन्स थे, जो बंदरगाहों में टाउन आबाद थे, जिस तरह कोलकाता है आज, उस वक्त थे, या मुंबई, इस तरह पोर्ट टाउन्स थे। पिलग्रिमेज टाउन्स थे, यानी जो मजहबी जो उनके लोगों के हवाले से ऐसे भी टाउन आबाद थे। सैक्रेड सेंटर्स थे विद प्रॉस्पेरिटी, यानी ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स वायर एट दैट वेरी टाइम इन 17th century विद प्रॉपर्टी, विद प्रॉस्पेरिटी एंड विद फैसिलिटीज। उसमें टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हैं, ट्रेडिंग टाउन्स हैं, पोर्ट टाउन्स हैं, पिलग्रिमेज टाउन्स हैं, यहाँ सैक्रेड सेंटर्स हैं जो मुकद्दस शहर माने जाते थे। इसके अलावा एक और बात है, अर्बन ग्रुप्स इंक्लूड फिजिशियंस। इसके अलावा जो फिजिशियंस थे, जिन्हें हकीम या वैद कहा करते थे, हकीम जो दूसरे टीचर्स थे, उनमें पंडित या मुल्ला लोग कहते थे। लॉयर्स, जिनको वकील कहते हैं। पेंटर्स थे, उस वक्त पेंटर्स के अलावा एक और आर्किटेक्ट्स थे, म्यूजिशियंस थे, कैलीग्राफर्स थे। एंड दे ऑल डिपेंड्स ऑन द इंपीरियल पैटर्नेज, यानी इसमें सभी लोग जो थे वो इंपीरियल पैटर्नेज से ज्यादा वाबस्ता लोग थे। इसका मतलब यह है कि जो कोर्ट लोग, जो हुक्मरान लोग थे, वो इन लोगों का ख्याल रखते थे। इन टाउन्स में जो लोग बसते, इनका भी ख्याल रखते थे। जो फिजिशियंस थे, पेंटर्स थे, लॉयर्स थे, यानी स्किल्ड पर्सन थे। स्किल्ड पर्सन भी जो थे वो दे हैव टू डिपेंड ऑन द रॉयल पैटर्नेज। सो वी कंक्लूड विद दिस दैट जो बर्नियर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हवाले से स्पेशली इंडिया, मुगल इंडिया के बारे में लिखा है, दैट वाज बायस्ड, वो बिकॉज ही वाज विद द फॉरेन आई, वो हकीकत की निगाहों से नहीं बल्कि वो यूरोपियन निगाहों से देखता था। उसने सबसे पहले ये माइंड सेट बनाया था, द एशियन पीपल आर डाउन ट्रॉडन पीपल, द एशियन पीपल आर द बैकवर्ड पीपल, दे हैव नो राइट्स। सो हकीकत हाल डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारते थे। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते थे कि अकबर के ज़माने में 48 से 50 किस्म के जो अनाज उस वक्त यहाँ उगाए जाते थे। दैट मीन्स वी हैव सरप्लस एग्रीकल्चर, वी हैव सरप्लस एवरीथिंग देयर। तो सो दैट वाज नॉट द रियल position or the picture that have stated by the foreign travelers regarding this. So today क्योंकि बर्नियर और डिजेनरेट ईस्ट, क्योंकि उसका ये विद दिस आइडिया कि उसका ये मानना था कि ये जो एशिया की पोजीशन है या ईस्ट की पोजीशन है, जो मशरकी दुनिया की पोजीशन है, वो कहीं इंफीरियर है, वो कहीं डाउन ट्रॉडन है एज कम्पेयर टू द यूरोप और एज कम्पेयर टू द फ्रेंच. सो इट वाज नॉट रियल पोजीशन. थैंक यू.